سر پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہاں پر آ کے جی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، آپ کو بھی خوش آمدید. تو یہاں بنیر کے سنا تھا کہ سب سے زیادہ تباہی یہاں پھیلی ہے. جی سر. تو ساتھیوں نے ہمارے جو جامع رشید کے شاگرد ہیں انہوں نے یہاں سروے کیا تھا جی اور جو بھی لسٹ ہے جو ضرورت مند لوگوں کی وہ تیار کی. جی سر. تو پھر اس لسٹ کے مطابق ہم نے جو مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن اور پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ جی سر. ان دونوں کے ذریعے ہم نے یہاں پر الحمدللہ خوراک اور برتن، کیونکہ بہت سے لوگوں کے پانی میں برتن بہہ گئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس کی ڈسٹریبیوشن آج الحمدللہ اللہ نے ہم سے یہ خدمت کی. آپ سر پہلی دفعہ بنیر آئے ہو؟ نہیں، بنیر تو میں ویسے پہلے آ چکا ہوں، جی سر. لیکن ان حالات میں تو پہلی دفعہ آیا. سر آپ نے کیا دیکھا یہ سیلاب؟ بس سیلاب نے جو تباہی پھیلائی ہے، جو پورے گاؤں بنیر کے پورے گاؤں جو ہے وہ مٹ گئے ہیں. کل ہمارے شاگرد ہیں، عطا اللہ نام ہے ان کا، یہیں ہوتے ہیں. جی سر. انہوں نے بتایا کہ ایک گاؤں کے ابھی شادی ہونے والی تھی ان کی، جو دونوں فیملیاں مرد اور خواتین، 40 افراد ایک کے اور 30 افراد ایک کے، تو پوری بارات سمیت پورا سبھی بہہ گئے. یعنی 2-3 فرد گھر کے زندہ، خاندان کے زندہ بچے ہیں. بالکل سر. اور مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ ابھی جن علاقوں کے سروے کریں گے ان علاقوں میں آپ کو لگے گا کہ یہ تو خالی میدان ہے، یہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے. جی. تو وہ خالی میدان ہو گئے ہیں، وہ پورے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. جی بالکل. اور ان کے جو ریلیٹیو سعودی عرب میں، ملیشیا میں، وہ اب یہاں آ رہے ہیں، تو وہ 4-6 لوگ آپ کو یہاں ٹہلتے ہوئے نظر آئیں گے. بالکل. جو زندہ بچ گئے ہیں تو وہ تھے جو باہر گئے ہوئے تھے. تو بہت بڑی تباہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ میں رکھے، اور جو جن لوگوں کی شہادتیں ہوئیں اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں رشتہ دار اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. عوام کو کیا پیغام دینا چاہو گے کہ کیسے عمل کرے کہ اس طرح طوفان نہ آئے ہم پہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ عوام کو تھوڑا سا حکومت پہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، 2022 میں بھی آپ کو بتایا سیلاب آیا تھا، اگرچہ اس کی نوعیت اتنی خطرناک نہیں تھی، لیکن اس میں سنبھل جانا چاہیے تھا. جی سر. حکومت کو پہلے سے پلان کر لینا چاہیے تھا. یہ سیلاب پوری دنیا میں آتے ہیں، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، UK میں بھی، پوری دنیا میں. انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے کہ اگر یعنی وہاں یہ مینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں 300 سال پہلے آیا تھا، تو اس حساب سے وہ دیکھتے ہیں ہسٹری میں سب سے بڑا سیلاب کب آیا، اس حساب سے مینجمنٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں گورنمنٹ لیول پر ایسی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے. دوسرا، عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ دریا کے قریب گھر نہ بنائے، نہ رہائشی ہوٹل بنائے، نہ گھر بنائے. ٹھیک ہے، غربت ہے، لوگوں سے ہم نے یہاں پوچھا، لوگ کہتے ہیں بھائی غربت ہے، وہ کہاں ان کو کہاں پراپرٹی ملے گی، کہاں پلاٹ ملے گا ان کو، تو وہ بیچارے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بس جاتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جان سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے تو لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں 10 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوا تو چلو ہم بھی گھر بنا لیتے ہیں. بھائی سیلاب تو 100 سال کے بعد بھی آ سکتا ہے، 50 سال کے بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے لوگوں کو بھی تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے کہ درخت نہ کاٹیں. ہاں، ایک اہم ترین بات ہے، لینڈ سلائیڈنگ سے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. درخت کاٹنے سے پہاڑ کچے ہو جاتے ہیں. جی سر. لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، انوائرمنٹ پورا چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی لوگ نہیں کاٹ رہے، یہ بھی میرا خیال ہے گورنمنٹ ہی انوالو ہوتی ہے اس میں. اور وزراء، جو وزیر جنگل ہے، وہی میرا خیال ہے، جو جہاں تک ہمیں معلومات ہے، سب سے زیادہ انوالومنٹ اسی کی ہوتی ہے. یعنی جس نے جنگلوں کو بچانا چاہیے وہی جنگل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے. تو درخت کٹ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، اس سے ماحول چینج ہو رہا ہے، اور اس سے پہاڑ خراب ہو رہے ہیں، پہاڑ پھسل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. اللہ کا نظام ہے، اللہ کے نظام سے نہیں لڑنا چاہیے. بالکل. جی سر، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو. پور ساتھ ہیں. ہم جب یہاں آئے تو سب کی زبان پہ یہی تھا، بھائی مفتی صاحب بہت کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور 3,500 افراد کو تیار کرنا رضاکارانہ طور پر کہ یہاں پر جو ہے جو بھی یہ ریسکیو کا کام ہے یہ کریں تاکہ یہ لوگ معمول کی زندگی بحال ہو. یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول کرے، اور اس کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو صدقہ جاریہ بنائے. جی، اور ہم نے ان کے وعدہ کیا ہے، ٹوٹی پھوٹی جو ہم سے مدد ہو سکی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ. جو مالی تعاون ہم سے چاہیے، اور ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، اور جو ان کی ہم نے خدمات دیکھی، اور یہ ان سے نہیں بلکہ جو محلے کے علاقے کے لوگوں سے ہم نے جو ان کے پر، جب تیسرا آدمی کوئی کسی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے تو وہ نیوٹرل ہوتا ہے، اس کا کوئی سیاسی مفاد نہیں ہوتا، اس کے کوئی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. تو جب علاقے کے لوگ کسی کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں کہ یہ انہوں نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، تو وہ واقعی پھر خدمت ہوتی ہے. تو آج ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ کل رات کی رپورٹ کے مطابق 1,000 افراد تھے، اب ماشاءاللہ 3,500 افراد تیار ہو چکے. تو ہم نے کہا ہم ضرور آئیں گے تاکہ ہم ان نوجوانوں کی جو ریسکیو کا کام کر رہے ہیں ان کی ہم تھوڑی حوصلہ افزائی کر سکیں کہ ہم اس خدمت میں
जिस तरह हो सके उंगली कटा के, शहीदों में नाम लिखवा के, हम बहरहाल आपके साथ हैं। अल्लाह ताला इन नौजवानों की मेहनत को कबूल करे। आपने मुतासरा इलाकों का विजिट किया, दौरा किया, वहाँ आपने क्या देखा? आप मुतासरा इलाके के जो लोग हैं उनसे क्या इम्दाद करेंगे? देखिए, मुतासर इलाकों का अब तक जो हम दौरा कर चुके हैं उसमें हमें एक बेवा नजर आई जिसकी दोनों टांगें टूट चुकी हैं और वो बेवा हुई है, उसके शौहर बह गया। एक शख्स नौजवान नजर आए जो दिमागी तवाज़ुन खो चुका है क्योंकि उसके सामने उसका मासूम बच्चा पानी की नजर हो गया। 18 अफराद एक खानदान के जहाँ बहर हुए उसके सामने। तो वो लोग जो बाहर थे, मलेशिया में थे या कमाने के लिए बाहर गए हुए थे, वो बच गए। अब वो आके अपने गांव को देख रहे हैं, पूरा गांव मिलियमेट हो चुका है। और अब इनके लिए असल मसला ये नहीं है कि जो है हमारे घर और हमारे मकान, सबसे बड़ा मसला अपने प्यारों की लाशें तलाश करना। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह ताला से इस चाहे माली एतबार से या रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन के अल्लाह ताला से मेहनत को कबूल करे। और असल ये राशन वाशन तो सिर्फ एक अलामती चीज होती है। और मुफ्ती फजल गफूर साहब से भी कल रात हमारी इसमें बहुत लंबी डिस्कशन हुई है कि राशन बड़ा मसला नहीं है। असल ये है कि इनकी मामूल की जिंदगी को बहाल करना है। उसके लिए पाइप, पानी की लाइनें डालना और घरों की तामीर करना, सोलर प्लेटें लगा के ताकि ये बिजली वगैरह गाँव देहातों में आए। तो इसके लिए पॉकेट कोशिश करेगा। फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है, हमने इनसे वादा किया है और इलाके के लोगों की उनसे हमने वादा किया है कि हम ये पानी की बहाली में और बिजली की बहाली में और घरों की तामीर हम साथ खड़े हैं और इस काम को हम फायर तक पहुँचा के इंशाअल्लाह। आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा है, मुहैयर हजरात के लिए हम मुहैयर हजरात के नाम क्या पैगाम देंगे? या जो इलाका है या जो कारोबारी मराकज़ है, ये सब कुछ तबाह हो चुके हैं। देखिए, मुखैर हजरात के लिए एक तो अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दें। वो यहाँ मैंने अपने शागिर्दों से मिला जो मालदार लोग हैं, उन्होंने अपने घर के 10-10, 15-15 तोले सोने बेच के लोगों के साथ ताउन किया। दूसरी बात ये कि जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो उसमें जो मुस्तहिक और गैर मुस्तहिक में फर्क करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बहुत दफा ऐसा होता है जब मालूशाही बढ़ रही होती है ना, तो जो मुस्तहिक नहीं होते वो पेड़े खाने के लिए आ जाते हैं। तो और जो गमज़दा होते हैं वो अपने प्यारों की लाशें तलाश कर रहे होते हैं। तो अपना पैसा सही हाथों में पहुंचाएं आप। जो भी लोग हैं वो ऐसा ना हो कि जो भी आ रहे चंदा मांगने के लिए पकड़ा दिया उसको आपने। आप तहकीक करें, जो काबिल एतमाद ट्रस्ट हैं उन पर ट्रस्ट करें आप। और अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे फाउंडेशन, बहुत सारे ट्रस्ट हमें नजर आए, कराची से आए हैं और लाहौर से और केपी से यहाँ के मकामी लोग। जिसमें भी आपको एतमाद ताउन करें, लेकिन इस तरह पर्सनली जो लोग भीख मांगना शुरू कर दिए लोगों ने और इस तरह आपका पैसा ज़ाया होने का खतरा ज्यादा है। बुनेर में हम इस वक्त मौजूद हैं, ज़ोहर की नमाज यहाँ पे भी पढ़ी है और हर दूसरा शख्स जिससे मुलाकात हो रही है वो एक नई गम की दर्द की दास्तान है। अभी ये भाई हैं, इनकी फैमिली के टोटल 18-20 लोग इस सैलाब की नज़र हो गए और यानी 18 लोग। अभी कब्रें आप एक शॉट में देख रहे होंगे, ड्रोन की शॉट में इन्होंने मैं खुद बताया कि ये हमारी फैमिली की वो कब्रें हैं और इसी तरह से एक लाश तो अभी तक मिली भी नहीं है। तो कब हुआ ये साने में? ये तो जुमे वाला दिन था। उसी टाइम मैं बहरीन में था, मैं उधर बाहर मुल्क में था, उधर मेरे को खबर सुना, लेकिन फिर मैं इधर आया। पूरा आदमी ऐसा हमारा बाबा था, इसमें हमारा सिस्टर का 4, फिर भाई लोगों का 2 था, इसमें हमारा एक भतीजा था, थोड़ा सा पीछे भांजा भी था, यार इनको मना कर एक देंगे। सिस्टर था, उसका 2 बच्चा भी था। ध्यान थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। लेकिन बहुत ये ऊपर से आया, पता नहीं, हम लोग को मालूम नहीं था, लेकिन उस वक़्त बहुत हम लोग परेशान था। लेकिन इधर कोई टीम आया, लेकिन हम लोग सिर्फ हुकूमत से ये मुतालिबा करते, हम लोग को घर चाहिए। इसमें तकरीबन 8 घर तबाह हो गया, ऐसा माशी वो भी तबाह हो गया, भैंस वगैरह गाय वो भी पूरा। लेकिन खेती बाड़ी का नाम और निशान नहीं। अभी आप लोग भी देखेगा उधर जगह कैसे है कैसे नहीं है। हमारा बाबा था, उसका एक चाचा था, उसका दो बच्चा था, अभी उसका एक आदमी का अभी तक लाश नहीं मिला। किस वक्त आया है ये अचानक? यह तकरीबन 9 बजे से 10 बजे बीच में आया और जुमे वाला दिन सुबह जी सुबह 15 तारीख जनाज़ों में पहुंच गए थे आप? नहीं, हम तो आए थे, ज़्यादा मेरा बदकिस्मती की वजह से टिकट हमको नहीं मिला। उस्ताद जी, ये सूरत हाल है, ये किसी फैमिली का एक कोई शख्स ज़्यादा दूर होता है, बिछड़ता है, तो ये कितनी तकलीफ होती है? ये भाई हैं, इनके भी इनकी घरवाली भी और
चचा चचा भी इनका है शहीद। चचा है, पापा जान है, बीवी है, बहन है, सब कुछ सलाब ने शरई तौर पे क्या हमें इस वक्त में सब्र की क्या तलकीन मिलती है और इन मा कद्दर अल्लाह, मा कद्दर अल्लाह, जो मुकद्दर था उसको भूल जाएं, आइंदा का सोचें। रफ़ियतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, नबी ने फरमाया कि जिस जो मुसीबत मुकद्दर में लिखी है वो होके रहेगी, जो हो चुका उस पर इंसान को गम नहीं करना चाहिए। आइंदा के लिए इंसान असबाब भी इख्तियार करे और हुकूमतों से भी मुतालबा करें। सैलाब तो हर साल आते रहते हैं, हुकूमत पहले से क्यों इंतज़ाम नहीं करती है? पहले से क्यों इंतज़ाम नहीं? 2022 में आया था सैलाब, सिंध में 2 दफ़ा इतना बड़ा सैलाब हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन लोग तबाह हुए। अब तक कोई इंतज़ाम नहीं है। दोबारा बारिश होंगी सिंध में, फिर इसी तरह कल बारिश हुई जो कराची में परसों दवाई बहुत बारिश हुई है, उसमें बहुत इनके जो मकानात तबाह हुए हैं बहुत बड़ा नुकसान। हुकूमत का सबसे पहला तो जिम्मेदारी है कि हुकूमत की कि इनके मकानात जो तबाह हुए हैं उनको बनाए। हमसे जो हो सका इंशाल्लाह हम जो कर सके हम करेंगे। हुकूमत के पास तो ताकत और क़ुव्वत ज़्यादा होती है, मसाइल ज़्यादा होते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो हो गया वो तो हो गया, उसमें तो नहीं। हमारे दुआएं आप लोगों के साथ हैं। यकीनन ये गम ऐसा है जिसका कोई मदावा नहीं है। जब अपने बिछड़ते हैं तो जिस पर गुजरती है उसी को इसका अंदाजा होता है, लेकिन सब्र का मौका भी यही है। एक हदीस मुबारक है कि औरत का ना बेटा फौत हो गया तो बहुत वावेला मचा रही थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे कहें कि ये सब्र करे। तो उस वक्त तो उसके मुंह से अल्फाज निकले, उसका मफहूम कुछ ऐसा है कि जो मुझ पर गुजरी है मैं जानती हूँ। फिर चंद दिन के बाद उसने कहा कि मैंने सब्र कर लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौका वही था सब्र का, अब उसमें नहीं किया तो अब चाहे तुम सब्र तो वैसे भी वक्त के साथ आ ही जाता है ना। तो इसलिए यही सब्र का वक्त है। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। इंशाल्लाह हम सब आप लोगों के लिए दुआगो हैं, और जो कुछ हमसे पाकिट वेलफेयर ट्रस्ट से, हमारे MTM से, मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन से, हम इंशाल्लाह यहाँ वहाँ से कराची से यहाँ तक आए हैं, तो यकीनन यहाँ भी आपके साथ हर मौके पे हर मसले में आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दिन से हम सवात में ही घूम रहे हैं। जो मुतासिर इलाके हैं वहाँ पर बहुत ही शदीद हालात हैं। जिन घरों में मैयतें हुई हैं, एक एक मैयत नहीं, कई मैयतें, किसी के भाई चला गया, 18 अफराद एक खानदान के चले गए, 40 अफराद पूरा गांव 40 अफराद समेत मिलिया मेट हो गया। अभी एक बेवा खातून से मिले हैं, उनकी टांगे बेचारी की खातून की टूट गई और बेवा हो गई। वो शौहर उनका लाश में यानी बह गया है पानी में और लाश नहीं मिल रही, इसकी फिक्र में लगे हुए हैं। तो बहुत ही नागुफ्ता भी हालात हैं। इसलिए आप लोग से मैं गुजारिश करूंगा कि बढ़ चढ़ के ताउन में आप लोग हिस्सा लें, ताकि हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, जामिया रशीद के हमारे फारिग तलबा पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। हमें ये फायदा है कि हमारे तलबा चूंकि पूरे मुल्क में हैं तो वो मुतासिर इलाकों का दौरा करके पूरी अच्छी एक रिपोर्ट बना के हमें दे देते हैं। तो आप लोग मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन या पाकिट वेलफेयर ट्रस्ट इनके साथ भरपूर ताउन करें, ताकि इन मुतासिर इलाकों में ज्यादा से ज्यादा मदद जाए। अल्लाह ताला आप सबका अमल कबूल करे और सदका बनाए इसके लिए।